Good morning, students. Last time we had solved up to question number 5th of exercise 2.2, which is related to range, domain and codomain and range of any relation. So I am going to continue the same exercise. Read question number 6. There is a relation defined as this: ordered pair x plus 5, where x belongs to this set which contains 6 elements 0, 1, 2, 3, 4, 5. We have to find out range and domain of this relation. You can read this question, exercise 2.2, question number 6. Determine the domain and range of the relation defined as this. So I am going to find out its domain and range. So first of all we have to find out this relation in roster form. So clearly it is very easy. You can see x can be taken 0, 1, 2, 3, 4, 5. Put x is equal to 0. So we have 0 and 0 plus 5, 5. Put x is equal to 1. So 1, 1 plus 5, 6. Put x is equal to 2. Then this is 2 plus 5, 7. 3 plus 5, 8. 4 plus 5, 9. 5 plus 5, 10. So only after x cannot be taken more than 5, only values of x can be 0, 1, 2, 3, 4, 5. When we put here, we will get this ordered pair. Now, what is the domain of any relation? That is collection of first elements of the ordered pair which belong to that relation. So you can see this one, this one, this one, this one, this one are the ordered pairs which is related to R. So its first element 0, 1, 2, 3, 4, 5. That is your domain. Now range of R is what? Collection of second elements. So this one 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay, so that is the ranges. Okay, now this is the domain and range of this relation. So that is the solution of question number 6. Now I am going to find out, I am going to solve question number 7. Write question number 7. Write a relation R defined as x cube. X cube. This one is cube. Where x is a prime number. Where x is prime number less than 10. Less than 10. Okay, इन रोस्टर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है. आप देखो x क्या क्या हो सकता है. x कैन बी, दिस इज प्राइम नंबर लेस देन 10. The smallest prime number is 2, then 3, then 5, then 7, then 11. 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11. Okay, लेकिन 11 cannot be taken here. Why? Because we have to put only that prime numbers which are less than 10. So only value of x can be taken 2, 3, 5 and 7. So this one is R is collection of ordered pair in which first element is x, second element is x cube, and where x can be taken as 2, 3, 5 and 7. So clearly it will be 2 cube, that is 8. That is, after that 3 cube 27, 5 cube 125 and 7 cube. 7 7 is 49 into 7 9 is 63 and 7 4 is 28. 28 plus 6.
34, 343. So this is the relation in the roster form. So that is the solution of question number 7. If someone asks you that find out its domain, so its domain will be collection of first elements, that will be 2, 3, 5 and 7. Its range, so range is what? Range is collection of second elements, means 8, 27, 125 and 343. Okay. Now next question, question number 8. I am going to solve question number 8. These are very easy questions. Now read question number 8, everyone. Question number 8 is, let A containing 3 elements x, y, z, B contains 2 elements 1, 2. Find the number of relations from A to B. Find number of relations. Number of relations from A to B. See its solution. We know that relation from any set A to any set B is what? It is nothing. It is subset of A Cartesian product B. If R is a relation from set A to set B, then R is subset of A Cartesian product B. Clearly, number of relations from A to B is same as number of subsets. देखो R क्या होता है? A Cartesian product B का subset होता है. ये relation from A to B. Clearly A से B में कितने subsets बनेंगे? Sorry, A से B में कितने relations बनेंगे? उतने ही जितने A Cartesian product B के subset होते हैं. So number of relations from A to B will be same as number of subsets of A Cartesian product B. A Cartesian product B is also a set. And how many subsets are there in any set? Question arises here. How many subsets are there? You know, if there are n elements in any set, then there will be 2 to the power n subsets of that set. So it will be equal to 2 to the power number of elements in A Cartesian product B. A Cartesian product B में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर वो लगा दो, उतने A Cartesian product B के सबसेट्स मिलेंगे. अगर कोई सेट A है, if it has n elements, then how many subsets of A exist? 2 to the power n. तो A Cartesian product के कितने सबसेट्स मिलेंगे? 2 to the power जितने एलिमेंट्स A Cartesian product B में है. अच्छा n A Cartesian, यहाँ पे देखो A Cartesian product B में कितने एलिमेंट होंगे? आप यहाँ से निकाल लो. That is equal to NA into NB, means product of elements in A and elements in B. How many elements in A? 3. How many elements in B? 2. That is 6 elements only. Clearly it will be equal to 2 to the power 6. Means A से B में कितने relations form हो सकते हैं? 2 to the power 6. 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 to the 64. Total 64 subsets can be formed from set A to set B. Okay. Now next question, question number 9. Let R be a relation on Z defined as, question number 9. Question number 9. Let R be a relation on Z defined by R
is a relation on Z. On Z करेंगे मतलब ये R is a relation from Z to Z. Z से Z में relation. That is R is subset of Z Cartesian product Z, where Z is a set of integers. Okay, and it is defined as R is defined as collection of ordered pairs AB, where A and B belongs to Z. A minus B is an integer. To find the domain and range of R. Okay, very easy question. सी, लेकिन इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. देखो, सबसे पहले तो ये उन सारे ऑर्डर्ड पेयर को कलेक्ट करेगा जिसमें ए और बी इंटीजर्स हो और इस तरीके से हो कि उनका डिफरेंस भी इंटीजर हो. रोस्टर फॉर्म में हम लिख नहीं पाएंगे, इसलिए नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ये एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा. क्योंकि डिफरेंस ऑफ इंटीजर्स, ये ए और बी क्या इंटीजर्स है और डिफरेंस ऑफ इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर, तो कोई भी एलिमेंट छूटेगा ही नहीं. ओके, we know that difference of two integers is always an integer. So for all A belongs to Z, for all AB belongs to Z, A minus B always belongs to Z. Always it is an integer. Okay, so its domain will be, अच्छा डोमेन क्या होता है? इन फर्स्ट एलिमेंट्स का कलेक्शन. और ये क्या क्या हो सकते हैं? कोई भी इंटीजर हो सकता है, जो भी आप चाहो, सारे इंटीजर्स इसमें आएंगे. सो डोमेन विल बी ऑल इंटीजर्स. डोमेन विल बी व्हाट? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. कोई एलिमेंट नहीं छूटेगा, जो चाहो सब आएगा. एंड रेंज ऑफ आर, दैट इज आल्सो एन इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स. क्योंकि यहां पे जो भी एलिमेंट रखो और यहां पे कोई भी एलिमेंट रखो, यहां पे जो भी एलिमेंट, जो भी इंटीजर रखना चाहो रख लो, यहां कोई भी एलिमेंट यहां पे रख दो, उनका डिफरेंस हमेशा इंटीजर ही आएगा. बिकॉज डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर. ओके, तो कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट मतलब ए के एलिमेंट्स, ए जो जो हो सकता है वो कलेक्ट कर ले, दैट इज डोमेन. अब ए सारे इंटीजर्स हो सकते हैं, तो डोमेन उसका सारा इंटीजर हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया. और बी भी कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो बी भी सारे इंटीजर्स हो सकते हैं, तो इसका रेंज भी वही हो गया. ओके, सो आई थिंक दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड, दिस exercise has finished now. There are only 9 questions. Now I am going to introduce inverse of a relation. Inverse of a relation. Inverse of any relation. Okay, see, if A and B are two non-empty sets and R is a relation from A to B defined as
as collection of AB where A belongs to set A, B belongs to set B, A R B इस रिलेशन से रिलेट है. Then inverse of R is defined as is denoted as R inverse. R inverse, and it is a relation from B to A. R कहां से कहां तक है? A से B में है. R inverse कहां से कहां तक होगा? B to A, and defined as R inverse. जरा ध्यान से देखिएगा. It is collection of all BA where AB belongs to R. Finished. समझिए इस चीज को. जितने भी AB R में हैं, फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए. जितने R डॉट पेयर मिलेंगे वो R इनवर्स में. जाहिर सी बात है कि AB कहां के एलिमेंट होंगे? A कार्टेशियन प्रोडक्ट B के. तो BA कहां के एलिमेंट होंगे? B कार्टेशियन प्रोडक्ट A के. और B कार्टेशियन प्रोडक्ट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अगर हम कलेक्ट कर ले, सो दैट विल बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट B टू सेट A. That's why R inverse will be a relation from B to A, and it is defined as collection of all BA such that AB belongs to R. I am going to give you an example. See, I am going to rub this. Consider a relation R 1 2 2 3 3 4 this one. Okay, then R inverse, बस इन्हीं ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दो. इट विल बी 2 1 3 2 4. आप सोच रहे होगे कि ये स्पेस क्यों छोड़े, कुछ चीजें दिखानी है. आप देखो, व्हाट विल बी डोमेन ऑफ R? Domain of R, that is collection of first elements 1 2 3. And what is the range of R? Range of R, that is collection of second elements 2 3 4. Now find out domain. This is also a relation, na? R inverse is also a relation. So we can find out domain and range of R inverse also. So find out domain of R inverse. Domain of R inverse. तो देखो डेफिनेशन नहीं बदल जाएगी, ये भी एक रिलेशन है. और किसी भी रिलेशन का डोमेन क्या होता है? उनमें जितने भी ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट ऑर्डर पेयर. ये ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहे हैं, इनके फर्स्ट एलिमेंट्स को कलेक्ट करो 2 3 4. ओके, and range of R inverse. चूंकि R inverse is what? R inverse is also a relation. So range of any relation is what? That is the collection of second elements of each ordered pair which belongs to R inverse. So R inverse में belong करने वाले जितने भी ordered pair हैं उनके second elements को collect कर लो. That is 1 2 3. That is the range of R inverse. अब जरा ध्यान से देखिए, domain of R को देखो. Domain of R is collection of 1 2 3, and here range of R inverse को देखो, that is collection of 1 2 3. Clearly range of R inverse is same as domain of R. Domain of R और range of R inverse. Domain of R और range of R inverse same होगा. ये एक रिजल्ट है. Range of R inverse is equal to domain of R. Domain R का जो डोमेन होगा वो R inverse का रेंज होगा, और R का जो रेंज होगा उसको देखो, कलेक्शन ऑफ 2 3 4, ये R इनवर्स का डोमेन होगा, दैट इज रेंज ऑफ R. मतलब समझ में आया?
means I am going to write this here. Very simple, means domain of R will be same as range of R inverse, and range of R will be same as domain of R. Okay, so that's enough for today. Next time I will explain a very important relation, that is called function. जैसे रेक्टेंगल है, उसका रिलेशन क्वाड्रिलेटरल से जो है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका रिलेशन जो ट्रायंगल से. इक्विलेटरल ट्रायंगल इज व्हाट? इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल which satisfy a condition. What is that condition? All sides of that triangle will be equal. What is the relation of rectangle with quadrilateral? Rectangle is a special quadrilateral which satisfy a specific condition, specific property. What is that property? What is that condition? All angles of that quadrilateral must be equal to 90 degree. वैसे ही रिलेशन है फंक्शन का रिलेशन से. फंक्शन एक रिलेशन, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. फंक्शन इज ए रिलेशन विच सेटिस्फाई अ कंडीशन, जो एक कंडीशन को फुलफिल करता है, और वो ये है कि अगर सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन हो जिसमें सेट ए के हर एक एलिमेंट्स की इमेज सेट बी में मिले. तो आप सोच रहे होंगे कि इमेज क्या है. आप देखो ये आर यही था ना, यही आर था. ओके, 1 2 2 3 3 4. तो ये एलिमेंट होता है और इसको 1 का इमेज बोलते हैं अंडर दिस रिलेशन आर. यहां पे देखो 1 की इमेज क्या है? 2 है अंडर रिलेशन आर. 2 की इमेज 3 है अंडर रिलेशन आर. 3 की इमेज 4 है अंडर रिलेशन आर. तो ये सेकेंड एलिमेंट जो होता है दैट इज इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट अंडर द रिलेशन, गिवन रिलेशन, ये बोला जाता है. एंड फर्स्ट एलिमेंट इज प्री इमेज. ये इसका इमेज है, ये फर्स्ट वाला इसका प्री इमेज है. जैसे 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 हम बोलते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट है और B A का सुपरसेट है. वैसे ही है, ये 2 1 का इमेज है एंड 1 2 का प्री इमेज है अंडर रिलेशन R. ऐसे 2 3 का प्री इमेज है एंड 3 2 का इमेज है अंडर रिलेशन R. 4 इज इमेज ऑफ 3 अंडर रिलेशन R and 3 is pre-image of relation, pre-image of 4 under relation R. अगर कोई रिलेशन डिफाइंड है इस तरीके से, आपको मैं दिखा दूं जरा, एक एग्जांपल दूंगा सिंपल सा. सेट A है कंटेनिंग 1 2 3, सेट B है कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट 4. ओके, हम रिलेशन डिफाइन करें तो A कार्टेशियन प्रोडक्ट B का सबसेट होना चाहिए. A कार्टेशियन प्रोडक्ट B में क्या आएगा? 1 4 2 4 3 4. ये A कार्टेशियन प्रोडक्ट B हो गया. तो R1 हम ले लें, R1 5 भी हो सकता है, दैट इज द सबसेट ऑफ A कार्टेशियन प्रोडक्ट B. R2 हम ले, सिर्फ 1 4 ले लो, दैट इज आल्सो रिलेशन फ्रॉम A to B. R3 इसके सबसेट होने चाहिए. R3 ले लिए 1 4 3 4, that is also a relation from set A to set B. R4 ले लिए 1 4 2 4 3 4.
ओके, ये भी हो सकता है। R5 ले सकते हैं, R5 दैट इज 2 4 3 4। तो इसमें यहां से A से B में कितने रिलेशंस बना सकते हैं? 2 टू द पावर जितने इसमें एलिमेंट है दैट इज 3, 2 टू द 4 टू द 8 रिलेशंस बन सकते हैं, जिसमें से 1 2 3 4 5 रिलेशंस मैंने लिखे हैं। अभी 3 रिलेशंस और बन सकते हैं। इन रिलेशन में से वो रिलेशन जो एक स्पेशल क्वालिटी को होल्ड करता है उसको हम फंक्शन बोलते हैं। और वो स्पेशल क्वालिटी ये है कि सेट ए के हर एलिमेंट्स की इमेज सेट बी में मिलनी चाहिए। पहली चीज, सेट ए के हर एलिमेंट्स की इमेज मिलनी चाहिए। और दूसरी कि यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। मोर देन वन इमेजेस नहीं हो सकती। उस चीजों को देखा जाए तो ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सेट ए के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं मिल रही। ये भी रिलेशन है बट इट इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 की इमेज मिल रही है, बाकी 2 और 3 की इमेज नहीं मिल रही है। ये भी रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। व्हाई? क्योंकि इसमें 1 की और 3 की इमेज मिल रही है लेकिन 2 की इमेज नहीं मिल रही है। ठीक है, इसको देखो तो इसमें 1 2 और 3 सबकी इमेज मिल रही है। तो पहले फंक्शन की पहली जो कंडीशन है उसको ये फुलफिल करता है, R4 उसको फुलफिल कर रहा है। कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा? जब वो दो कंडीशंस को फुलफिल करे। जैसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कब होगा? जब वो दो कंडीशंस को फुलफिल करे। पहली कंडीशन उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री हो, और दूसरी कंडीशन उसके सारे साइड्स इक्वल हो। ये 2 कंडीशंस होती है कि नहीं स्क्वायर होने के लिए? एनी क्वाड्रिलेटरल विल सेटिस्फाई these two conditions, that is called square. First condition, each angle must be equal to 90 degree. Second condition, each sides will be equal to each other. In the same way, किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए 2 कंडीशंस होनी है। फर्स्ट कंडीशन, each element of set A has an image. एक इमेज जरूर होगा। जैसे इस केस में है 1 की 2 की और 3 सबकी इमेज है। इस केस में नहीं है, 1 और 3 की है बट 2 की इमेज इसमें नहीं है। इसमें 1 की सिर्फ है, 2 और 3 की नहीं है। तो ये सब रिलेशंस हो सकते हैं, फंक्शन नहीं हो सकता। ऐसे ही आप इस वाले को देखो, इसमें 2 और 3 की इमेज मिल रही है, 2 और 3 की इमेज मिल रही है, लेकिन 1 की इमेज नहीं मिल रही है, इसलिए ये भी रिलेशन है, फंक्शन नहीं हो सकता। फंक्शन की कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये होल्ड कर रहा है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज मिल रही है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। किसी एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा है इसमें, क्योंकि 1 की सिर्फ एक ही इमेज 4 मिल रही है, 1 की कोई और इमेज नहीं मिल रही है। 2 की सिर्फ एक ही इमेज मिल रही है, 2 की कोई और इमेज नहीं मिल रही है। 3 की एक ही इमेज मिल रही है, 3 की कोई और इमेज नहीं मिल रही है। आप यहां से नहीं समझ पा रहे होंगे क्योंकि ऐसा ही मैंने एग्जांपल ले लिया था। मैं दूसरा एक एग्जांपल आपको लेकर के दिखा दे रहा हूँ। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया हूँ तो मैं बता दूं। ये सेट ए है और ये सेट बी है। ओके, 1 2 3 4 ए बी सी डी हम ले लें। ये ऐसे ले लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया, ये देखो। ठीक है, एक दूसरा ले लेते हैं, ये ए और ये बी। ये रिलेशन आर है, R1 है, और यहाँ पे रिलेशन R2 है। 1 2 3 ए बी सी। ऐसे मैंने लिया, फिर ऐसे लिया, ऐसे लिया, और ये भी ऐसे लिया। ठीक है, मतलब कि 1 की इमेज ए है, 1 की इमेज बी है, 2 की इमेज सी है, 3 की इमेज सी है। यहाँ पे 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज बी है। अगर हम इसको R1 इसको इस फॉर्म में लिखे तो ये आएगा 1A 2B 3। ओके, इसको हम लिखें तो ये R2 आएगा, R2 ये आएगा 1A 1B 2C एंड 3C, ऐसे आएगा। एंड थर्ड वन ये A यहाँ पे B
ए बी सी 1 2 3 ऐसे कर लें। तो इसमें आएगा R3 ले लो, ये R3 रिलेशन R3, सो दैट विल बी 1A 2B एंड 3B। ओके, तो इसमें ये देखना है कि R1 R2 R3 में से कौन सा रिलेशन फंक्शन है। रिलेशन तो सब है, फंक्शन कौन सा है। तो 2 कंडीशंस होल्ड करनी चाहिए। फर्स्ट, सेट A के हर एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए। आप देखो यहाँ 4 की इमेज नहीं मिल रही। 4 सेट A में है बट इट हैज नो इमेज इन B, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं। R1 इज अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। चलिए R2 में देखें। तो फर्स्ट कंडीशन, सेट A के हर एलिमेंट्स की इमेज मिलनी चाहिए। मिल रहा है, 1 की भी इमेज मिल रही है, 2 की भी इमेज मिल रही है, 3 की इमेज भी मिल रही है। लेकिन हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेजेस नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पे आप देखो 1 की इमेज A भी है और 1 की इमेज B भी है, 1 की इमेज A भी है, 1 की इमेज B भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये फर्स्ट कंडीशन तो होल्ड करता है लेकिन सेकंड कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है। दिस इज आल्सो नॉट अ रिलेशन। ओके, सॉरी दिस इज अ रिलेशन बट इट इज नॉट अ फंक्शन। इसमें अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, A के हर एक एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए। मिल रहा है, 1 की भी इमेज मिल रही है, 2 की भी इमेज मिल रही है, 3 की भी इमेज मिल रही है। लेकिन किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा भी है। ऐसा नहीं है कि 1 की एक से ज्यादा इमेज मिल रही है, 1 की सिर्फ एक इमेज मिल रही है, दैट इज A। 2 की सिर्फ एक इमेज मिल रही है, दैट इज B। 3 की भी सिर्फ एक ही इमेज मिल रही है, दैट इज D। तो ये दोनों कंडीशंस को होल्ड कर रहा है। हमको सेट B को नहीं देखना है, आप ध्यान देना, सेट B को नहीं देखना है। आपको दिख रहा होगा कि B तो दो एलिमेंट्स की इमेज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको दिख रहा होगा कि C की तो कोई प्री इमेज है ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ सेट A को देखना है। सेट A के जितने एलिमेंट्स हैं उनकी इमेजेस मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एलिमेंट ऐसा हो जिसकी इमेज न मिले। और सेट A में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी एक से ज्यादा इमेज मिले। जैसे यहाँ पे है 1 की दो इमेजेस मिल रही थी, 1 की इमेज A भी है और 1 की इमेज B भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। तो R3 इज अ फंक्शन। R3 is a relation which follow both conditions of the function. That's why R3 is a function. Okay, next time I will explain this again, so be sincere for your studies. That is very important in mathematics world. Function is very important. Okay, so that's enough for today. Thank you so much.